अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पेपर टू स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 2020 से मई जून 2020 वेरिएंट 2-1। ओके, पेपर टाइम 2 hours 30 मिनट 2 hours 30 मिनट। आज हम पेपर टू स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इंशाल्लाह पेपर से पहले तक आपको इंशाल्लाह 5 से 6 पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कहाँ का आप आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे पेपर टू के सॉल्यूशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है फर्दर वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सकें। अच्छा जी, इन द फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा द स्पीड v किलोमीटर पर आवर ऑफ 80 व्हीकल्स। ठीक है, आपके पास 80 व्हीकल्स का डेटा गिवन है, उसकी स्पीड का डेटा आपके पास गिवन है। एग्जामिनर मालूम कर रहा है एस्टिमेटेड मीन ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, एस्टिमेटेड मीन फाइंड आउट करने का कह रहा है। ठीक है, एस्टिमेटेड मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एस्टिमेटेड मीन इज सम ऑफ fx upon sum of f, where this sigma means sum of, this f means frequency, means quantity, tadad, x means midpoint of class interval, midpoint of class interval. Okay, so the first step is to find out the value of x, get the value of x, find the midpoint of class interval. The first class interval is 30 to 40. The formula for finding out the midpoint is add both of them and then divided it by 2. When you add 30 and 40, मैं पहले एक करके बता रहा हूँ, divided by 2, it will be 70 upon 2, it will be equal to 35. ओके, सो हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली करना है। 30 और 40 का मिड पॉइंट होगा 35। सिमिलरली 40 एंड 50 हैविंग मिड पॉइंट 45, 50 and 60 midpoint is 55, 60 and 70 midpoint is 65, 70 and 80 midpoint is 75. So the first step is to find out the midpoint, which is representing by x. Okay, then the formula, the second step is fx over here. Fx means the product of frequency and midpoint, the product of these two. If you multiply 35 by 10, the next step is to get fx, means the value of the product of frequency and midpoint. When you multiply 35 by 10, you will get 350. Similarly, when you multiply 45 by 18, 45 by 18, you will get 810, 810. Then multiply 55 by 27, 55 by 27, you will get 1485. Similarly, multiply 65 and 19, 65 by 19, you will get 1235, 1235. In the last, multiply 75 by 6, 75 by 6, you will get 450 as a product. Now, the next step is this sigma, this E means sum of fx. You need to add all the fx, you need to find the sum of fx. So sum of fx means you need to add 350 plus 810 plus 1485 plus 1235 plus 450. Whatever the result will come, that will be called sum of fx. Let's add them. 350 plus 810 plus 1485 plus 1235, 1235 plus 450. Your answer will be 4330, 4330. Sum of fx is 4330. Sum of f, then in the denominator there is sum of frequency. As in the question they have mentioned that the data is of 80 vehicles, so their sum, the total of the frequency will be
sum of frequency will be 80. When you add all of them, you will get 80. So you need to divide the number, the sum of fx by the total frequency, which is 80. When you divide these two, 4330 divided by 80, you will get 54.125. 54.125 or 54.13. This is 3 mark question. Okay, आपको समझ में आया होगा. Now the next question is cumulative frequency. Cumulative frequency curve में आपको सबसे पहले accumulate करना होता है frequency को. ओके, दिस वाज एस्टिमेटेड मीन को ऑलमोस्ट हर साल या हर दूसरे साल में क्वेश्चन आता है. और इसी के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या हिस्टोग्राम आता है. हिस्टोग्राम की भी वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हैं. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ. सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे, उसके अंदर सबसे पहले आपने देखना होगा कि क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है और उसका सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपर लिमिट है 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10. क्या है फ्रीक्वेंसी? 10. आपका सवाल होता है कि वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू 40, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सी एफ का कॉलम होता है नीचे है 10. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन होगा वेलोसिटी लेसर देन और इक्वल टू 50, मींस 50 और 50 से कम. 50 और 50 से कम ये दोनों हैं. You need to add both of them. 10 plus 18, it will be 28. Then third will be velocity. स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है v. स्पीड लेसर देन और इक्वल टू 60. तो लेसर देन और इक्वल टू 60 का मतलब होता है ये ऊपर वाले तीनों, यहां तक 28 था, 28 plus 27, it will be 55. Then speed lesser than or equal to the fourth one is 70, lesser than or equal to 70. तो आपने इसका मतलब है 70 तक सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है. यहां तक 55 था, 55 plus 19, it will be 74. 55 plus 19, it will be 74. Then last one, lesser than or equal to 80, माने स्पीड जिनकी lesser than or equal to 80 माने 80 और 80 से कम वाले सारे. तो यहां तक आपका 74 था, 74 plus 6, ये लास्ट वाला 6 है, 74 plus 6, it will be 80. So this is the way to complete the data for cumulative frequency curve. Okay, upper limit and CF means cumulative frequency means previous को accumulate करना. तो इस तरह से आप लोगों का डेटा आएगा जो आपने accumulate करना होगा. कभी टेबल बना होता है इस तरह से, आपने कंप्लीट करना होता है. कभी जैसे इसमें टेबल नहीं है तो आपने खुद ने इस तरह से टेबल बनाना है. द फर्स्ट आंसर इज 40 and 10. द फर्स्ट आंसर इज 40 and 10, x40 and y10, x40 and y10. The first answer is over here. The second answer is 50 and 28. 50 and 28. 50 and 28 is over here. This is the second answer. The third answer is 60 and 55. 60 and 55. 60, 50, 60, 52, 54, 55, 60 and 55. The fourth answer is 70 and 74. 70 and 74. 70, 80, 78, 76, 74. One small line representing 2 unit in y-axis. And the last one is 80 and 80. So plot the point 80. 80, it will be over here. So these are the answers जो आपने plot किए. Now the next step is, after plotting the point, you need to join them by the smooth curve. Started with the initial point. There must be in one go. थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मैं दोबारा से बनाता हूँ.
आंसर मस्ट बी मींस जो कर्व होगा इट मस्ट बी इन वन गो, यहाँ पे आपके पास स्केचिंग नहीं होना चाहिए। ओके, आंसर में आपके पास रेंज होगी तो वो हम चेक करेंगे आगे। ये इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे पॉइंट्स को प्लॉट करने के और स्मूथ कर्व बनाने के। तो ये आपको 3 मार्क्स इसके मिलेंगे। अच्छा जी, देन आपके पास क्वेश्चन आएगा इसमें लोअर क्वार्टाइल का, मीडियन का, अपर क्वार्टाइल का, इंटर क्वार्टाइल रेंज का, इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है। आप अगर चैनल पे जाके स्टैटिस्टिक्स सर्च करेंगे तो उसमें आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो बता रहा हूँ। मीडियन, use your cumulative frequency diagram, find an estimate for the median. Median, the definition for finding out the median is the value of x at half of data. डेटा जो था इट वाज ऑफ 80 व्हीकल्स। 80 व्हीकल्स का डेटा था हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में, देयर वर 80 व्हीकल्स। तो 80 व्हीकल्स को हाफ करेंगे, हाफ ऑफ माने मल्टीप्लाई 80, इट विल बी 40। 40 is not your exact answer. What you need to do, you need to check, you need to draw a horizontal line at 40 and get the value of x at y is equal to 40. y is equal to 40 पे आपने एक horizontal line draw करनी है। y is equal to 40 is over here. y is equal to 40 is over here. यहाँ पे एक मैंने horizontal line draw की, इसने हमारे कर्व को यहाँ कट किया। इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी, वट एवर द वैल्यू ऑफ x एट दैट पॉइंट, दैट विल बी योर आंसर। 51, 52, 53, 54, योर मीडियन इज 54। इसमें जितना एक स्मॉल लाइन इक्वल होगा उतना आपके पास आंसर में रेंज हो सकती है। योर मीडियन, estimated median is 54 kilometer per hour. Then interquartile range. Interquartile range. Interquartile range means upper quartile, the final answer of upper quartile and the final answer of lower quartile. The difference between upper quartile and lower quartile is called interquartile range. Okay. Now, how to find Q3? The definition for finding out the upper quartile means Q3 is the value of x at 3/4 of data or 75% of data. Similarly, the definition for lower quartile, which is representing by Q1, is the value of x at 1/4 of data, or we may say that 25% of data. ओके, डेटा टोटल 80 व्हीकल्स का है। ऊपर हमने देखा था 80 व्हीकल्स का डेटा है, तो 3/4 ऑफ 80 निकालेंगे, 420 इट्स 60। 60 इज नॉट योर फाइनल आंसर। आपने 60 वो y की वैल्यू देखी है जिस पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और वहां ग्राफ पे जहां कट करेगी वहां पे x की वैल्यू देखनी है। दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ 60 पे आपने क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन एट 60, और उस पे जहां ग्राफ कट करेगा वहां पे आपने x की वैल्यू देखनी है। 60 इज नॉट योर आंसर। आपने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x at y is equal to 60, that will be your answer, that will be your answer। तो हम देखते हैं 60 पे x की वैल्यू क्या आ रही है। ड्रॉ करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन 60 पे, ये y is equal to 60 है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसने हमारे कर्व को यहाँ कट किया। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम x की वैल्यू देखते हैं। The value of x over here is 62. So our upper quartile is Q3, representing by Q3, which is 62. Now, similarly, lower quartile, the value of x at 1/4 of data, 1/4 of माने multiply data 80 vehicles का है, 420 20 आपके पास वैल्यू आ गई। 20 इज नॉट योर फाइनल आंसर, क्योंकि बच्चे बार बार यही मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं इस बात को बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। 20 इज नॉट योर आंसर। आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x एट y इज इक्वल टू 20।
अब y इज इक्वल टू 20 हमारे पास है ओवर हेयर, y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, इसने हमारे कर्व को यहाँ कट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू है 41, 42, 43, 44, 46। सो हमारा लोअर क्वार्टाइल आया, Q1 आया 46। हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला था फाइनल आंसर ऑफ Q3 एंड फाइनल आंसर ऑफ Q1 विच इज 62 माइनस 46। 62 और 46 को माइनस करते हैं हम, 62 माइनस 46, योर आंसर इज 16। Your interquartile range is 16. So this is your final answer. This is about question number 2. ये भी हर साल आने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसको जो चीज़ समझ में ना आई हो वो मैं आपको दोबारा डिस्क्राइब कर दूँ। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑनटू ट्रायंगल बी। तो पहले तो डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ लें कि डिस्क्राइब जब बोले तो आपने बातें क्या क्या बतानी होती है। डिस्क्राइब का मतलब है विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। दूसरा, उस ट्रांसफॉर्मेशन का की पॉइंट क्या है। हर ट्रांसफॉर्मेशन के की पॉइंट होते हैं, वो आपने उसके डिस्क्राइब करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो ए और बी है, इट सीम्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, मींस इमेज एज इट इज नीचे बन गई है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज एज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसका इमेज बन गया है। तो ये दिखने में हमें इट सीम्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन में स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, एज इट इज ऑब्जेक्ट और इमेज मूव होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिफ्लेक्शन होती है, वर्टिकल लाइन पे रिफ्लेक्शन होती है, स्लोपिंग लाइन पे रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद रोटेशन और फिर लास्ट में एनलार्जमेंट। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज ऊपर और नीचे है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो रिफ्लेक्शन का जो की पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसका की पॉइंट। अब इसका की पॉइंट है रिफ्लेक्शन लाइन। रिफ्लेक्शन का की पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्शन लाइन। अब आपने लाइन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी लाइन पर रिफ्लेक्शन हो रही है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ऑब्जेक्ट और इमेज का, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, इसका सेंटर निकालेंगे आप। 1 2, इसका सेंटर है ये पॉइंट। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसका सेंटर है ये पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसका सेंटर है ये पॉइंट। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को आपने तीनों पॉइंट का सेंटर निकाल लिया, ये मैंने लाइन बना दी। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस। जिसकी जो रिफ्लेक्शन लाइन बनी है वो क्या है? वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम y इज इक्वल टू 0 भी कहते हैं। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस और अंडर y इज इक्वल टू 0। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक रिफ्लेक्शन बताने के और उसका एक की पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्शन लाइन है वो बताने के। ओके, देन सेकंड वन इज ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज अबाउट 1 1। अब रोटेशन के जो की पॉइंट होते हैं वो होता है उसका सेंटर। रोटेशन का की पॉइंट क्या होता है? रोटेशन का की पॉइंट होता है सेंटर। के सेंटर क्या है उसका? ओके, और डायरेक्शन क्या है उसकी, और उसकी डिग्री कितनी है, कितने डिग्री रोटेट हो रहा है वो। अच्छा जी, अब सेंटर आपके पास गिवन है 1 1, डायरेक्शन आपके पास गिवन है एंटी क्लॉकवाइज, और डिग्री आपके पास गिवन है 90 डिग्री। ओके, तो सेंटर 1 1, सबसे पहले आपने क्या करना है? यू नीड टू प्लॉट अ सेंटर। सेंटर 1 1 इज ओवर हेयर। मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। 1 1 आपने किसको रोटेट करना है? यू नीड टू रोटेट ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए को रोटेट करना है और जो इमेज बनेगा दैट विल बी ट्राइंगल सी।
ओके, तो सबसे पहले मैं सेंटर के मुताबिक मैं ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। ट्राइंगल ए में 3 कोने हैं, तीनों कोनों को मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। आप पी क्यू आर दे दें, आपकी मर्जी, आप कोई भी दूसरे वेरिएबल इसका नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दिया ए, बी और सी तीनों कोनों को। अब नए सेंटर के मुताबिक ए के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ए जो है वो सेंटर पे ही मौजूद है, नया सेंटर है 1 1 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सेंटर है। तो यहाँ ए जो है सेंटर पे ही मौजूद है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, कहीं मूवमेंट नहीं हो रही, ना राइट लेफ्ट ना अप डाउन, तो 0 0। बी के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ से, ए सेंटर से, ये जो सेंटर मैंने हाईलाइट किया है, बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बी तक जाने के लिए 3 राइट जाना पड़ रहा है, 1 2 3, और अप डाउन नहीं है तो अप डाउन 0 है, मतलब y 0 है। सो नए सेंटर के मुताबिक बी के जो कोऑर्डिनेट है आर 3 एंड 0। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, इसी सेंटर के मुताबिक, जो मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, इसी सेंटर के मुताबिक सी तक जाने के लिए 1 राइट जाना पड़ रहा है और 1 अप जाना पड़ रहा है। तो 1 राइट मतलब x is +1, 1 up means y is +1. So these are the coordinates of A, B and C according to the new center. Whatever the center given to you, you need to use that center of rotation. Okay, तो ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया अकॉर्डिंग टू न्यू सेंटर। ओके, अब इसके इमेज में क्या होता है, जैसे एक्स वाई होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास क्या कोऑर्डिनेट बनता है, अगर एक्स वाई है तो इसका इमेज क्या बनेगा, एक्स जो होता है वो वाई हो जाता है, एंटी क्लॉक एक्स जो होगा, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका x होता है वो आपका -y हो जाएगा, और जो y होता है वो आपका x हो जाएगा। माने स्वैप होके y का साइन, माने फर्स्ट वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अब 0 0 है तो 0 0 को स्वैप करेंगे तो भी 0 0 रहेगा, और साइन चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज ऑफ b 3 0 है, इट बिकम 0 3। अब y माइनस का है, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस की है, 0 को माइनस लगाएं प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज ऑफ सी, पहले मैंने स्वैप कर दिया, 1 1 को स्वैप करूंगा 1 1 ही रहेगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। सो योर आंसर्स आर 0 0 0 3 1 1। 0 0 मतलब सेंटर पे ही आंसर रहेगा आपका, 0 0 मतलब आपका जो सेंटर था, 0 0 ये आपका सेंटर मतलब ओरिजिन ये है, इसी के मुताबिक आपने नए इमेज बनाने। 0 3 मतलब 0 राइट लेफ्ट एंड 3 अप, तो 0 राइट लेफ्ट एंड 3 अप, 1 2 3, तो ये मुझे पॉइंट मिल गया 0 3। -1 एंड 1 मतलब 1 लेफ्ट, क्योंकि x जो होता है वो राइट लेफ्ट मूव करता है, और y जो होता है वो अप डाउन मूव करता है। 1 लेफ्ट, y प्लस में है, 1 अप, तो इसी सेंटर के मुताबिक 1 लेफ्ट और 1 अप, ये मुझे ये तीसरा पॉइंट मिल गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, 0 0, सेकंड पॉइंट बी और ये सी, ये मुझे मिल गया ट्राइंगल सी। अगर अब आपको चेक करना है कि इधर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू, मैं आपने इसका सेंटर बी और बी का इमेज फॉर एग्जांपल, इसको आप लोगों ने मेजर करना है, सेंटर, ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर को ज्वाइन करना है। ये मैंने सेंटर को, ऑब्जेक्ट को और इमेज को ज्वाइंट किया। अब देखें ये इसके दरमियान में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह से अगर आप सी सेंटर माने सी ऑब्जेक्ट, सेंटर और सी का इमेज, इसका एंगल मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री बन रहा है, और किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। सो दिस इज द वे टू मेक एन इमेज। ओके, होप कि ये आपको क्लियर होगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में -y और x होता है, अगर क्वेश्चन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलता है तो प्रोसेस सारा सेम रहता, आपका सिर्फ ये y और -x हो जाता। ओके, जो आपका इमेज होता है वो y और -x हो जाता, माने स्वैप होने के बाद सेकंड वैल्यू का साइन चेंज होता। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
The C part is of 3 marks. Triangle A is mapped onto triangle D. मैं ये erase कर रहा हूँ. Triangle A is mapped onto triangle D by the single transformation P. इसकी जो transformation है वो है P. Single transformation P. The matrix representing P is 2 0 0 2. Describe fully the single transformation P. अच्छा जी, तो इसको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब करने से पहले जो है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी. ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी बाय मैट्रिक्स पी. सो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, दे आर आस्किंग टू फाइंड एन इमेज एंड देन उसको डिस्क्राइब करने का कह रहा है. अच्छा जी, तो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 0 0 2. ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए के 3 कोऑर्डिनेट है. एक है, इसको ए बी सी का ही नाम दे देते हैं. अब जब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सेंटर हमारा हमेशा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटर हमेशा हमारा ओरिजिन होता है, 0 0 होता है हमारे सिलेबस के मुताबिक. ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 1. ए के कोऑर्डिनेट है 1 1. बी के कोऑर्डिनेट है 4 1 अकॉर्डिंग टू द सेंटर, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन 4 1. और सी के कोऑर्डिनेट है 2 2. सी के कोऑर्डिनेट है 2 2 2 2. नाउ मल्टीप्लाइंग देम, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप लोग सबको आनी चाहिए. तो 2 1 2, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा. सिंपली क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. आपने से इसको क्रॉस बेसिक जो जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है आपने डायरेक्ट उसी तरह से करनी है. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी मैं बेसिक मैट्रिक्स आपको डिस्क्राइब करूं. बेसिक मैट्रिक्स की वीडियो मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे. ओके, सो आंसर आया 2 2, मतलब ए का इमेज आया 2 2, बी का इमेज आया 8 2 और सी का इमेज आया 4 4. ओके, तो पहला इमेज आया 2 2, हमने ये ड्रॉ किया 2 2 इज ओवर हेयर. मैं पुरानी सारी करेक्शन मिटा देता हूँ. फर्स्ट इमेज आया हमारे पास 2 2, सो 2 2 इज ओवर हेयर, इमेज ऑफ ए. सेकंड इमेज आया 8 2, 8 2 इज ओवर हेयर, इमेज ऑफ बी. और थर्ड आया 4 4, 4 4 ओवर हेयर, इमेज ऑफ सी. ओके, नाउ ज्वाइन देम. आप लोगों ने स्केल यूज करना है. सो ये आपके पास आ गया डी. ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब करना है. क्या करना है? इसको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो क्लियरली नजर आ रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आएगा इट मींस कि वो एनलार्जमेंट को शो कर रहा है. ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में सिर्फ और सिर्फ एनलार्जमेंट में आता है. ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज में फर्क आता है वो सिर्फ किस में आता है? वो सिर्फ एनलार्जमेंट में आता है. ओके, अब एनलार्जमेंट बता दिया. एनलार्जमेंट के की पॉइंट है. इनलार्जमेंट के की पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में की पॉइंट मेंशन जरूर करना होता है. सॉरी, इसका की पॉइंट है स्केल फैक्टर और सेंटर. अब स्केल फैक्टर क्या होता है? अगर आपने मैट्रिक्स से स्केल फैक्टर देखना है तो जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें जो ये वैल्यू है 2 2, ये इसके स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है. अगर लीडिंग डायगोनल पे सेम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और दूसरा तरीका क्या होता है इसका स्केल फैक्टर मालूम करने का? के मींस स्केल फैक्टर, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन करेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. ये आपका स्केल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इमेज कंसीडर कर रहा हूँ ए डैश और बी डैश माने हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, तो इसकी क्वांटिटी है, इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6. और इसके जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो ये है 1 2 सॉरी 1 2 3. 6 अपॉन 3 स्केल फैक्टर इज 2.
तो आप इस तरह से भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब कभी भी मैट्रिक्स में इस तरह से होगा तो के जो होगा वो स्केल फैक्टर होगा, और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटर हमेशा ओरिजिन होता है 0 0। सो इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, मैट्रिक्स आपको इमेज बनाने के और इसको डिस्क्राइब करने के। सो ये हो गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है इट्स क्वाइट सिंपल, आई होप कि ये आप लोग खुद करेंगे। सिंपल रीअरेंज करना है, n को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाओ। m+3 is equal to 4n, m+3, 4 is multiplying over there, it will be divide. Now n becomes subject। बिल्कुल आसान, 2 मार्क्स इन्होंने गिफ्ट दिए आप लोगों को। उसके बाद फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यू नीड टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने पूरा सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, it's about simple and compound interest. Anton invest $6,000। अच्छा, जो चीज हम इन्वेस्ट करते हैं, जो चीज हम इन्वेस्ट करते हैं या बोरो करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल इज $6,000 इन एन अकाउंट फॉर 5 years। जो टाइम है इसका वो 5 years है। अच्छा जी, द अकाउंट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंडीशन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है amount for compound interest is equals to P1 plus R over 100 whole power T time। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, रेट आपके पास गिवन है 2.5% पर ईयर। एक चीज का ये ख्याल रखना है कि टाइम और रेट का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, इन चीजों का ख्याल रखना है। सो एट द एंड ऑफ 5 year ही स्पेंड, पहले तो एट द एंड ऑफ 5 year उसके पास पैसा कितना होगा। उसके पास 5 साल पहले 6,000 उसने इन्वेस्ट किए थे, 5 साल बाद उसके पास कितना पैसा होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 6,000, 6,000 इज योर प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया था, रेट था 2.5%, टाइम था 5 साल। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं। 6,000 डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं आप लोग। स्टेप 3 मार्क्स का सवाल है, स्टेप शो कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 6,000 ब्रैकेट फ्रैक्शन 102.5 divided by 100 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 5। Your answer is 6788.45। तो ये तो आपके पास अमाउंट होगा 5 साल बाद। आफ्टर 5 year you are having $6,788.45, ये आपके पास अमाउंट होगा। अच्छा जी, नाउ एट द एंड ऑफ 5 year, 5 साल बाद ही स्पेंड, उसने खर्च किए कितने, $4,200। तो आफ्टर 5 years he is having $6,788.45। इसमें से उसने स्पेंड किए $4,200, तो बाकी कितना बचा, हाउ मच मनी लेफ्ट इन द अकाउंट, तो माइनस कर देते हैं 4,200, द अमाउंट इज 2,588.45। तो ये वो अमाउंट है जो उसके अकाउंट में बाकी रहा 4,200 खर्च करने के बाद। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड आंसर, क्वेश्चन नंबर 4।
2588 is the correct answer. Now ये सवाल एक्सचेंज रेट वाला, ये भी ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Anton changes $800 into Malaysian ringgits for his trip. कितने डॉलर? $800 को उसने एक्सचेंज किया किसमें? MYR में. जबकि एक्सचेंज रेट था, जब उसने एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज रेट था $1 representing 3.16 MYR. Okay, so the exchange rate was $1 representing 3.16 MYR and he exchanged $800. तो उसने कितने रिसीव किए होंगे? ठीक है, यू नीड टू मेक अ रेशो कि रेट क्या है और कितने एक्सचेंज करने हैं. ओके, $1 representing 3.16 MYR and he exchanged $800 into MYR. So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x multiplied by 1 is equal to 3.16 multiplied by 800. When you multiply 3.16 into 800, you will get 2528 MYR. 2528 MYR means उसने मलेशियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिए. ओके, ही स्पेंड, उसने खर्च किया, ही स्पेंड 2250 MYR एंड देन चेंजेस द रिमेनिंग मनी बैक इनटू डॉलर. जो वो घूमने गया तो उसने जो स्पेंड किए, जो खर्च किए वहाँ पे, उसका अमाउंट है जो उसने खर्च किया, तो वो मैं माइनस कर देता हूँ. माइनस उसके पास टोटल अमाउंट है 2528 MYR, उसने स्पेंड किए 2250, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसके पास 2528 minus 2250. The remaining amount is 278 MYR मलेशियन करेंसी. ओके, अब इसने जो बाकी बचे, जब वो वापस रिटर्न में गया तो उसने उसको दोबारा एक्सचेंज किए. जब उसने दोबारा एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज रेट था $1 रिप्रेजेंटिंग 3.27 MYR. तो आपने एक्सचेंज रेट लिखना है $1 रिप्रेजेंटिंग 3.27 MYR मलेशियन करेंसी. ओके, उसके पास 278 MYR है. वो बोल रहा है कि इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, डॉलर में x कंसिडर कर लिया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम, 1 मल्टीप्लाई बाय 278, 3.27 मल्टीप्लाई बाय x, तो 278 3.27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो 278 डिवाइडेड बाय 3.278 डिवाइडेड बाय 3.27, जो बाकी उसके पैसे बचे थे जब उसने उसको डॉलर में कन्वर्ट किया तो आया 85.01, जो कि आपको नियरेस्ट डॉलर में देना है, तो इट विल बी $85. सो दिस इज योर आंसर. 3 मार्क क्वेश्चन था ये, हर साल आता है, इस बात को जहन में रखिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी, नाउ एंटन इन्वेस्ट $1500 इन अनदर अकाउंट. दूसरे अकाउंट में उसने इन्वेस्ट, मैंने बताया कि जो चीज इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. भाईजान ने $1500 किसी अकाउंट में इन्वेस्ट किए. द अकाउंट हैज कंपाउंड इंटरेस्ट. अगेन द कंडीशन इज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट का दैट इज P% पर ईयर. यूनिट लिखना लाजमी है. एट द एंड ऑफ 3 ईयर, टाइम जो है वो 3 ईयर्स है. देयर इज 1598.85 मीन्स 3 साल बाद जो पैसे होंगे वो अमाउंट कहलाते हैं. 3 साल बाद जो उसको अमाउंट था, माने जो इसने रखवाए थे 1500, 3 साल बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट बना वो बना 1598.85 डॉलर. ठीक है, दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ये आपके पास डेटा है जो क्वेश्चन में गिवन है और पी की वैल्यू आपने निकालनी है. अब आपका पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र है, अमाउंट का जिक्र है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी माने प्रिंसिपल, ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब रेट,
upon 100 whole power n या power t time. Okay, your amount is 1598.85. Your principal is $1,500. 1 plus r upon 100, अगर मैं इसका LCM लेता हूं तो 100 प्लस r जो है वो रेट है, एंड रेट इज रिप्रेजेंटिंग बाय p, और टाइम जो है इट्स 3 years. ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं. ये 1598.85 1500 is multiplying over here, it will be divide after changing its position is equals to 100 plus p upon 100 whole power cube. So क्यूब खत्म करने के लिए हम लोग करेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. मैं इस वैल्यू का क्यूब रूट निकालता हूं, शिफ्ट दबा के रूट का बटन दबाया, क्यूब रूट फ्रैक्शन 1598.85 divided by 1500. Your answer is 1.022. 1.022 is equals to क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 100 plus p upon 100. 100 is dividing over here, it will be multiply. जब 100 multiply होगा तो 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा. 102.2 is equals to 100 plus p. 100 प्लस का है, यहाँ के हमें p की वैल्यू मालूम करनी है. 100 यहाँ के माइनस का हो जाएगा. 102.2 माइनस 100 is equals to p. तो आंसर आया आपका 2.2. The value of p is 2.2. ये 3 मार्क का क्वेश्चन था. कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन ध्यान में रखनी है आप लोगों ने अच्छे तरीके से, और आंसर फाइंड आउट करना है. अच्छा, एक और बात. क्वेश्चन में बोला था 2 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है. ओके, तो मैंने जो आंसर निकाला था उसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा. यहाँ पर क्या था आंसर हमारा? क्यूब रूट फ्रैक्शन 1598.85 divided by 1500. ये आंसर आया था 1.0215. क्योंकि एग्जामिनर ने 2 डेसिमल प्लेस में आंसर मांगा है और मेरा 1 डेसिमल प्लेस में आंसर आ रहा है, तो मैं इसको इंक्रीज करूंगा 1.0215. जब ये मल्टीप्लाई होगा 100 से तो 102.2 नंबर आगे चला जाएगा 0.15. ओके, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा अकॉर्डिंग कंडीशन के मुताबिक. -100 तो आएगा 2.15. अब एग्जामिनर की कंडीशन पूरी हो गई. ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने इसका जो डेसिमल प्लेसेस था उसको आगे कर दिया ताकि मेरा जो आंसर आए वो 2 डेसिमल प्लेस में आए. इसका जो आंसर था क्यूब रूट, इसको मैंने 4 डेसिमल प्लेस में लिख दिया ताकि फाइनल आंसर जो है वो जब 2 डेसिमल प्लेस में दूं तो एक्यूरेट आंसर आए जो क्वेश्चन की डिमांड थी. ओके, सो दिस इज अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. A company makes and packages chocolate bars. X इसकी जो इट्स अ प्रिज्म शेप, एक प्रिज्म शेप है इसका जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. दे आर आस्किंग टू शो दैट x, the value of x is 4.5. It's very simple question. सो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपके पास दो साइड गिवन हो 7.5 है, एक साइड x है और एक साइड 6 है. जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो और तीसरा साइड मालूम करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. आई थिंक सबको आता होगा ये 7.5 स्क्वायर. ये आप लोग खुद कीजिएगा, आपका होमवर्क है. ये hypotenuse is 7.5, base is 6 and perpendicular is x. Okay, now these boxes are packed into cartons. ये जो boxes हैं इसको पैक किया किसमें? cartons में पैक किया. Each carton is a cuboid with internal dimension 30 centimeter by 28 centimeter by 8 centimeter. 80 boxes fill in one carton exactly. Find the value of h.
अब जिस कार्टन में इसको फिल किया उसकी जो डायमेंशन है वो 30 by 28 by 8 सेंटीमीटर। ओके, एक कार्टन में ऐसे 80 बॉक्सेस फिल किए जा रहे हैं। अब एक कार्टन है, रेक्टेंगुलर शेप है, इस तरह की। पहले तो एक बात समझें कि ये जो प्रिज्म आपके पास गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म जो आपके पास गिवन है, इसको अगर मैं फिक्स करता हूं तो ये जो आपके पास शेप गिवन है, इट विल बी द हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, इट विल बी लाइक दिस। तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूं तो जब मैं इस दो ऐसे चॉकलेट बार्स को फिक्स करूंगा तो एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, जो उसका एम्प्टी स्पेस है वो कवर हो जाएगा। ओके, जो इसकी कटिंग हुई है, जिस तरह से इसको कट किया गया है, जो ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म में अटैच करूंगा तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। जो आपका जो एम्प्टी स्पेस बनेगा वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आपके पास टोटल जो क्यूबॉइड जो उसकी लेंथ है क्यूबॉइड की वो 30 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो लेंथ आ रही है बॉक्स की वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 6 6 6 और 6, इस तरह से हमारे पास 5 आ जाएंगे। और हमारे पास जो बॉक्स की विड्थ है वो 28 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो चॉकलेट की विड्थ है वो है 14। तो बेस के अंदर 14 14 करके 2 आ जाएंगे। ये एक बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, ये चौथा बार। अब इसी के ऊपर एक और बार आ जाएगा, 2 4 6 8 और 10। 10 यहां आ गए, 10 यहां आ गए, तो एक लाइन में आ गए आपके पास 20। ओके, अच्छा जी। अब आपके पास हाइट आपको टोटल करने हैं कितने, एक बॉक्स के अंदर 80 की कैपेसिटी है, और एक रो में आपके पास आ रहे हैं 20 चॉकलेट बॉक्स। ठीक है, चॉकलेट बार के 20 बॉक्स आ रहे हैं, तो 20 बॉक्स आ रहे हैं, तो 80 बॉक्स के लिए टोटल आपके पास ऐसी 4 लेयर्स होंगी, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर। जब 4 लेयर लग जाएंगी इस तरह की, तो आपके पास चॉकलेट बार के 80 बॉक्सेस पूरे हो जाएंगे। जब 80 बॉक्सेस पूरे हो जाएंगे तो क्यूबॉइड जो होगा वो पैक हो जाएगा। ओके, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो हाइट जो है इसकी वो 4.5 थी, और हमें कितनी लेयर लगानी पड़ रही है, 4 लेयर्स लगानी पड़ रही हैं। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर पेकिंग द 80 बॉक्सेस, तो 4.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट 18। सो द हाइट द वैल्यू ऑफ h इज 18। 18 इस तरह से आप लोग निकालेंगे लॉजिक से। यहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी वर्क नहीं करेगी। ओके, अच्छा जी। नाउ द सेकंड पार्ट, one day company packs 37500 of these boxes into cartons। 37500 बॉक्सेस, इतने सारे बॉक्सेस को कार्टन्स में पैक किया। हाउ मेनी कंप्लीट कार्टन्स आर पैक, तो एक कार्टन में 80 बॉक्सेस है, तो इसको डिवाइड कर देते 80 से, तो 37500 डिवाइडेड बाय 80, आपका आंसर आया 468.75। तो कंप्लीट कार्टन जो बने वो 468 कार्टन बने। तो ये जो बॉक्सेस कितने, 468 कंप्लीट कार्टन्स में ये बार्स जो होंगे वो पैक हो जाएंगे। इसका आंसर जो है, इसका मार्क जो है वो करेक्ट आंसर पे ही मिलेगा, डेसिमल में आंसर नहीं दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कंप्लीट कार्टन्स बोला है तो 468 ही लिखना है। वैसे इसका आंसर आ रहा है 468.75। इसको आगे की तरफ राउंड नहीं कर लीजिएगा, इसमें राउंड नहीं करना, इसमें आपने बताना है कि कितने कंप्लीट कार्टन्स हुए। 468 कंप्लीट कार्टन है और 0.75 कार्टन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यू नीड टू राइट द कंप्लीट कार्टन्स। ओके, अच्छा जी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। द कंपनी सेल्स द चॉकलेट bars to shop for $0.70 each bar. The company makes 40% profit on each bar it sells.
वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी प्रोड्यूसिंग ईच बार। अच्छा जी, कंपनी को कितने की ये प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी कितने की उसको पड़ रही है, यू नीड टू फाइंड दैट वैल्यू। अच्छा जी, सो द कंपनी सेल्स द चॉकलेट बार्स टू शो फॉर दिस अमाउंट $0.70, जो कि कंपनी इस पे 40% प्रॉफिट रख रही है। तो 40% जो प्रॉफिट होता है, हमेशा वो 100 से प्लस करके होता है। तो कंपनी इसको सेल कर रही है 140% पे, 140% रिप्रेजेंटिंग $0.70। ठीक है, जो कंपनी को इसकी कॉस्ट पड़ रही है वो $100 है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, जब कोई भी चीज मैं सेल कर रहा हूं, उस पर प्रॉफिट रख रहा हूं, तो मैं वो 100 में प्लस करूंगा। ठीक है, अगर कंपनी 40% प्रॉफिट रख के सेल कर रही है, इट मींस कंपनी अपनी कॉस्ट के मुताबिक 140% पे सेल कर रही है। 100% उसकी कॉस्ट है और 40% उसका प्रॉफिट है। तो 140% के कॉस्ट पे वो सेल करी 0.70। अब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी, कंपनी को कितने की पड़ी थी, दैट इज 100%। हमेशा जो ओरिजिनल होता है वो 100% होता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 140 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 0.70 multiply by 100. Now x is equal to 0.70 multiply by 100 divided by 140. तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे, 0.700 into 100 will be 70 divided by 140, it will be 0.5, it will be 0.5। ठीक है, तो कंपनी को जो इसकी परचेजिंग पड़ रही है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है, प्रोड्यूसिंग की कॉस्ट पड़ रही है, वो पड़ रही है $0.5 की, और वो सेल कर रहे हैं उसको $0.70 में। ओके, सो ये हो गया आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन। अशोक बाइज 1 कार्टन फॉर चॉकलेट बार्स ऑफ चॉकलेट बार्स। एक दुकानदार ने कार्टन परचेज किया चॉकलेट बार्स का। अच्छा जी, चॉकलेट कार्टन के अंदर इज वी डिस्कस के 80 चॉकलेट बार्स होते हैं। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा है। दे सेल 3/5 ऑफ द बार्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 80, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 6 जा 16 3 जा 48, मतलब 48 बार्स जो है उन्होंने उस पर 30% प्रॉफिट रख के बेचा। ठीक है, 48 बार्स पे कितना प्रॉफिट रख के बेचा, 38, 30%। ओके, अच्छा जी, तो और बाकी भी चेक कर लेते हैं। द सेल दे सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग एट 0.84। 48 टोटल 80 थे, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे आपके पास 32। 32 बार्स दे सेल ईच $0.84। ओके, अब इसकी हमने ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करना है। 80 बार्स में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला कि टोटल 48 बार्स जो उसने 30% प्रॉफिट रख के बेचे, पहले हमने तादाद निकाल ली, और बाकी 32 बार्स जो उसने इस रेट में सेल किया। ठीक है, 48 बार्स 30% प्रॉफिट। ठीक है, उसके शॉपकीपर बाइज चॉकलेट बार, इसको जो एक चॉकलेट है वो उसका रेट है 0.70 ईच। 0.70 दुकानदार को ये सेल करती है कंपनी। 0.70 पे उसने 30% प्रॉफिट रखा। 30% प्रॉफिट का मतलब है उसने इस अमाउंट को 130% पे सेल किया। 130% ऑफ 0.70 प्रॉफिट, एज आई टोल्ड यू, या इसका 30% निकाल के बच्चे बहुत सारे ऐसे करते हैं कि 30% प्रॉफिट पे किया, 30% ऑफ 0.70, या आंसर निकाल के जो भी इसका आंसर आएगा प्लस उसमें 0.70 कर लेते, ये भी तरीका ठीक है। और डायरेक्ट आप 130% ऑफ 0.70 करेंगे तो ये भी तरीका ठीक है। 0.70 का 130% मीन्स 130% मल्टीप्लाई बाय 0.70। इसका मतलब है इन्होंने एक चॉकलेट 0.30% जब प्रॉफिट रखा, तो 0.70 वाली चॉकलेट इन्होंने कितने की सेल की, $0.91 की। और इस तरह से इन्होंने कितनी चॉकलेट बार सेल की, 48 चॉकलेट बार्स। मल्टीप्लाई बाय 48, मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये इनकी कॉस्ट आई, ये इनकी सेल प्राइस आई $43.68। ठीक है, ये 48 बार जो सेल किए ये उसके प्राइस आ गए। जो बाकी 32 बार्स हैं वो उन्होंने सेल की किस कॉस्ट पे, 0.84। 0.84 32
multiply 0.84, it will be 26.88 $26.88। तो टोटल सेल हुई उनकी 43.68 और 26.88 26.88 और 43.68। जो टोटल सेल हुई शॉपकीपर की 80 पार्ट्स की, वो हुई टोटल दोनों को प्लस करने के बाद $70.56। ओके, और इसको कॉस्ट कितने की पड़ी थी? एक एक चॉकलेट बार की कॉस्ट थी 0.70 और एक बॉक्स के अंदर थी 80। तो 0.70 इंटू 80, 0.70 इंटू 80, जो कॉस्ट आई थी वो थी 56। एग्जामिनर ने बोला प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करें। देखें क्या बोला, परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन की डिमांड थी परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये इसकी कॉस्ट थी, ये इसका सेल प्राइस था। तो अब इसको प्रॉफिट कितना हुआ पहले तो वो निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसने जो सेल की सारी चॉकलेट्स, उसकी कॉस्ट थी 70.56 और जो उसने परचेज की थी 80 चॉकलेट, एक 0.70 की थी और 80 पड़ी थी 56 की, $56। 70.56 माइनस 56, तो इसकी जो प्रॉफिट आया वो आया 14.56। अब एग्जामिनर ने इसके भी मार्क्स, माने ये भी, इट्स नॉट योर फाइनल आंसर। एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मींस कितना प्रॉफिट हुआ किस कॉस्ट पे, इनटू 100%। प्रॉफिट हुआ 14.56, कॉस्ट थी $56। दुकानदार ने $56 की परचेजिंग की थी मैन्युफैक्चरर से, कंपनी से, इनटू 100%। तो 14.56 divided by the cost price which is 56 multiply by 100, आंसर इज, इसको जो प्रॉफिट हुआ वो है 26%। द प्रॉफिट परसेंटेज इज 26%। ओके, तो ये था आपका, कोई ज़्यादा मार्क्स होंगे इसके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत सारी थी। ठीक है, सबसे पहले आपने 30% प्रॉफिट रख के निकाला, कितने क्या आया, फिर आपने 0.84 का आंसर निकाला और देन रेस्ट ऑफ द आंसर सारे निकाले। आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो सके। सारी डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब किया क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें एक साथ, ऑलरेडी ये बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं ताकि सब बच्चों का रिजल्ट थोड़ा बेहतर आ सके, थोड़ा अच्छा आ सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।